Uh, First property we have to remember is what is sine of 90 plus or minus theta. So what happens when there is a sine of plus or minus theta? Yes, please. If there is sine of 90 के कारण क्या होता है? Sine का क्या होता है? Cos theta. These are called as allied angles. This property is called allied angles, wherein sine of 90 plus or minus theta is cos theta. But if we have sine of 180 plus or minus theta, because of sine of 180 plus or minus theta, now tell me, 180 के कारण क्या होगा? Sine of 180. Sine का sin ही रहेगा. Okay. So now same thing I can write it over here as n pi by 2 n pi. Now what is n pi by 2 means? Means अगर 90 वाला कोई भी टर्म रहेगा ना, यानी n pi by 2, pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, तो n pi by 2 प्लस और माइनस थीटा यानी 90 वाला कोई भी टर्म रहेगा तो आंसर ही साइन का कॉस हो जाएगा. बट अगर 180 वाला कोई भी टर्म रहेगा, दैट इज 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसा कोई भी टर्म रहेगा, देन साइन का साइन हो जाएगा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एलाइड एंगल्स. वी आर गोइंग टू यूज दैट in the first exercise over here. Next thing, if you remember, this is very important how to use this. In the quadrants, if you remember, all silver tea cups, आपको सबको याद ही रहेगा. All silver teacups का meaning in the first quadrant. In the first quadrant, all are positive. In the second quadrant, we travel anti-clockwise. In the second quadrant, only sign is positive. Sign is positive. It's positive. Okay. In the third quadrant, only tan is positive. Tan is And in the positive. fourth Tan is quadrant, positive. only cos is Cos. positive. Positive. So everyone knows this. Okay. Now, a very quick answer I need. Tell me in which quadrant sign is positive? Second. Second. Second quadrant. Second. First and First second. and second. First and second. First and second. In we have sign is positive in first and second quadrant. In which quadrant tan is positive? First and third. Third and third. Third. In which quadrant cos is positive? First and First and fourth. First and fourth. So I hope everyone understood this. Now very quick question, a very quick answer with this. In which quadrant sign is negative? Third And and fourth. fourth. And fourth. Which quadrant tan is negative? Second and Second and fourth. And Tan fourth. is negative. Negative मैंने पूछा, इधर positive है, इधर negative आता है. In which Second. quadrant cos is negative? Second and third. Second and third. Second and third cos is negative. So whatever we are doing now is all related with कहाँ पे positive है, कहाँ पे negative है. Okay. The first type of questions that we are going to do is your principal solution. The first type of sums we are doing is the principal solution. Now, if I take an example of a sine curve, this is a sine curve, okay? It starts from 0 till 2 pi. We can also represent it in the form of a circle. याद रखना, whatever curves graphically जो represent करता है, वो circularly भी represent होता है. So here also the angle is 0 to 2 pi. Now principal solution का meaning है, if sine of alpha is a certain value, then what will be the values of alpha? So alpha का value will lie anything from 0. Alpha will lie anything from 0 till 2 pi. ठीक है? So यहाँ पर 0 से start होगा till 2 pi is called as a principal solution. So अगर sin alpha की बात करूँ, cos alpha या tan alpha सबके लिए सेम ही रहेगा. For any trigonometric ratios, any trigonometric functions, angle का value, that is called as the solution. This angle is called as the solution. If the solution of a trigonometric function lies between 0 to 2 pi. Why 0 to 2 pi? Because 0 to 2 pi signifies the whole angle. ये पूरा wave को signify करता है या ये पूरे angle को signify करता है. So if the solution lies anything between 0 to 2 pi, it is called as a principal solution. Okay, so this is the first topic. So what is the definition of a principal solution?
A solution alpha of a trigonometric equation is called a principal solution if alpha lies between 0 and 2 pi. Do remember, it is not equal to 2 pi, it is less than 2 pi. So that is called as a principal solution. Okay. So now, now the first question is cos of theta is equal to half. You already know cos of which angle is half? Yes, cos of which angle is half? 60. 60 का मतलब नीचे 3 आएगा is half. Okay, मैंने कहा ना ये मेरा solution है. This is called as principal solution. So we need to just check whether it lies between 0 and 2 pi. ठीक है? So this pi by 3 lies between 0 and 2 pi. Therefore, this is one of my this is a principal solution. Okay, तो ये आंसर ये पाई बाई 3 जो मिला है ना, that is my principal solution. जो पाई बाई 3 है, that is my principal solution. Okay, but मेरा principal solution lies anywhere between 0 and 2 pi. So is there anywhere else we get plus half? और कोई जगह है क्या प्लस हाफ लाने का? दैट वी नीड टू फाइंड. ओके, नाउ फॉर दैट वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी. हम लोग इसको नहीं यूज कर रहे हैं, ये पूरे एक्सरसाइज में इसको नहीं यूज करेंगे, हम लोग इसको यूज करेंगे. ओके, वी ऑलरेडी नो फ्रॉम एलाइड एंगल्स दैट साइन ऑफ 180 260 360, ठीक है, ऐसे वाला 1 पाई 2 पाई, पाई यानी 180, 2 पाई यानी 360, 3 पाई यानी 360 प्लस 180. ऑल दीज 180 वाला कोई भी टर्म रहेगा तो साइन का साइन ही रहने वाला है. हाँ, अगर 90 वाला होता तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म चेंज हो जाता, पर अब मैं ये यूज ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको यूज करने वाला हूँ. ठीक है, ये पूरे एक्सरसाइज में हम लोग सिर्फ इसी को यूज करने वाले. तो अपने को 180 प्लस 180 माइनस 360 प्लस 360 माइनस ये वाला ही करना है. ठीक है, सो नाउ वी विल बी अप्लाइंग दैट ओवर हियर. सो कॉस का आंसर पॉजिटिव है यहाँ पे. अदर देन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेयर इज कॉस आंसर पॉजिटिव? Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट में. ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का आंसर पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए अपने को 2 पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2 पाई माइनस पाई बाई 3 करना पड़ेगा. दिस इज 2 पाई, ये पूरा घूमेंगे ना, दिस इज 2 पाई माइनस पाई बाई 3 करना पड़ेगा. ठीक है, तो भी फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा. व्हाई? बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट कॉस ऑफ, सी 180 का टर्म रहेगा तो साइन का साइन रहता है, तो कॉस ऑफ 360 वाला टर्म रहेगा तो कॉस का कॉस ही रहेगा. आंसर इज कॉस ऑफ पाई बाई 3. 360 वाला टर्म है तो कॉस का कॉस ही रहेगा. व्हाट इज 360 वाले टर्म में क्या होता है? कॉस का कॉस रहेगा, एंगल सेम रहता है, एंड बिकॉज इट्स अ फोर्थ क्वाड्रेंट तो ये पॉजिटिव रहेगा. एंड व्हाट इज कॉस ऑफ 60 डिग्री? 1/2. समझा? So ये this is what we already know. तो तुमको सिर्फ इसको यूज करने आना चाहिए. ओके, दिस इज क्वाइट सिंपल टू यूज. तुमको ध्यान देना है किस क्वाड्रेंट में. फॉर एग्जांपल मेरे को ये क्वाड्रेंट में जाने का है, तो ये क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या है? डोंट से 90 प्लस. 90 प्लस यानी तुमने ये एलाइड एंगल यूज किया. डोंट से 90 प्लस. व्हाट यू विल से, ये क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करोगे तुम? 90 प्लस नहीं कर सकते तुम. यस, वेरी नाइस, 180 माइनस. ये क्वाड्रेंट में जाना है तुमको, तो यू कैन नॉट, डोंट से 3 पाई बाई 2 माइनस. 3 पाई बाई 2 माइनस मत करो. माइनस किया तो याद रखो, वी आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, वी आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज. माइनस का मतलब पीछे आना, प्लस का मतलब आगे जाने का. ठीक है, सो डोंट से 3 पाई बाई 2 माइनस, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म चेंज हो जाएगा. सो कैन यू टेल मी थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या करोगे? 180 plus. 180 plus. 180 प्लस. टेल मी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए तुम 3 पाई बाई 2 प्लस कर सकते हो. 3 पाई बाई 2, तुम 180 प्लस नहीं कर सकते, 180 प्लस नहीं कर सकते. ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए तो 3 पाई बाई 2 प्लस भी नहीं कर सकते, बिकॉज तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा. सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट यू विल डू? 2 pi minus. यस, 360 माइनस या फिर 2 पाई माइनस. 360 यानी 2 पाई माइनस कर सकते हो. ओके, सो दिस इज दीस आर. ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आंसर? कॉस ऑफ 6 पाई, दिस इज 6 पाई माइनस 5. 6 पाई माइनस 5, टेल मी व्हाट इज 6 पाई माइनस 5? जल्दी बोलो. Pi by 3. पाई बाई 3 का भी आंसर हाफ ही आया. ठीक है, तो cos of pi by 3 was half, so pi by 3 is one of my solution. Cos of 5 pi by 3 is also a half,
Therefore 5 pi by 3 which lies between 0 and 2 pi is a principal solution. So which are the principal solutions over here? Therefore 5 by 3 and 5 pi by 3 is a our principal solution. Okay. Cot is root 3. So what is tan? 1 upon root 3. 1 by root Now 3. we will start. Root 3. Now we'll start. We already know that tan of which angle is 1 by root 3? 30. Tan of which 30. angle is 30 degree. 30 degree यानी pi by 6 आएगा is 1 upon root 3. So that pi by 6 which lies between 0 and 2 pi is a principal solution. ओके अच्छा ये 2 पाई के अंदर लाए होता है कि तुम सॉल्व करके देखो वो 2 पाई के अंदर ही लाएगा बिकॉज हमने इसकी प्रॉपर्टी हमने 2 पाई माइनस किया है ना जब 2 पाई माइनस ही किया हुआ है तो 2 पाई के अंदर ही लाए होने वाला है ठीक है वो सिर्फ लिखने का तरीका है ठीक है ओके सो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया दिस इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन नाउ लेट्स गो टू द सेकंड स्टेप ओके नाउ फॉर सेकंड स्टेप अदर देन हियर वेयर एल्स इज tan पॉजिटिव इसके अलावा tan पॉजिटिव किधर है Third quadrant. tan पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट अब थर्ड क्वाड्रेंट पहुंचने का कैसे है अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था थर्ड क्वाड्रेंट कैसे पहुंचते हैं 180 plus. इधर पहुंचने के लिए एक ही तरीका है 180 प्लस करो 180 प्लस 5 by 6 तो 180 के कारण tan का tan ही होता है और अंदर का pi by 6 आता है और tan of pi by 6 ऑलरेडी क्या है 1 by 3 ठीक है तो इसका भी सोल्यूशन 1 by 3 आता है अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे 6 pi plus 5 टेल मी व्हाट इज 6 pi 7 plus pi 5 7 pi by 7 pi by 7 by 6. 6 is 1 by 3 therefore 7 pi by 6 which lies between 0 and 2 pi इधर इक्वल टू डालने का और इधर इक्वल टू नहीं डालने का is a principal solution. Is that clear everyone? All silver teacups. Other than that कौन सा allied angles पे का property पे depend है allied angles का कौन सा property है sin of 180 का कोई भी टर्म 180 का टर्म का मतलब n की वैल्यू 1 2 3 कोई भी हो सकता है ठीक है प्लस और माइनस आगे या पीछे 180 प्लस 180 माइनस आंसर इज प्लस और माइनस sin थीटा वो प्लस और माइनस किस पे डिपेंड है इसके ऊपर डिपेंड है ठीक है तो 180 वाला कोई भी तो इट्स नॉट ओनली फॉर साइन बाय द वे मैंने भले ही फॉर्मूला में साइन लिखा है बट इट इज नॉट ओनली फॉर साइन इट इज फॉर साइन cos tan ऑल ऑफ देम वी विल बी ओनली हैंडलिंग साइन cos tan अगर sec cosec cot आया तो उसको रेसिप्रोकल करके sin cos tan में कन्वर्ट करना है ठीक है दिस क्वेश्चन cot of theta is 0 so what is tan of theta tan theta is a reciprocal of cot theta right 1 upon 0 यानी infinite tell me tan of which angle is infinite 90. 90. so pehla solution for the first solution tan of 90 is infinite therefore 90 which lies between 0 and 2 pi is a principal solution yahan tak first part clear ho gaya अब other than this where else 90 के अलावा वो किधर पॉजिटिव आएगा तो टेल मी 90 के अलावा कहाँ पे पॉजिटिव आएगा यस Third quadrant. Third quadrant. क्वाड्रेंट अभी थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे अगले 180 180 plus. 180 plus 5 by 2 is also tan of 180 के कारण tan का tan ही रहता है 180 के कारण tan का tan ही रहता है दिस इज कॉल्ड एज by allied angles this is the property we are using allied angles property 180 के कारण tan का tan ही रहेगा 5 by 2 आएगा quadrant positive मतलब third quadrant इसलिए positive रहेगा and tan of 90 is already infinite ठीक है so therefore tan of solve करो 2 pi plus 5 यानी कितना आ गया 3 pi by 3 pi by 2 is infinite therefore 3 pi by 2 which lies between 0 and 2 pi is a principal solution. Therefore, what are the answers? 5 by 2 and 3 pi by 2 are the principal solution. Is this clear to you, everyone? Yes. Yes, Let's take another one now. Second, the first. Once again, I need to find principal solution.
Sin theta is equal to minus half. Sin theta is minus half. Okay, now this we need to find. तो क्या concentrate करना है? We have to concentrate at sin negative कहाँ आता है? Positive किधर आता है? Sin is positive in first and second quadrant. But where is sin negative? Yes, please. Third Where is and sin fourth negative? quadrant. Third and fourth quadrant. So And once again. fourth. So it's very simple to understand third and fourth quadrant. Okay. Now, half. सबसे पहले, sin of which angle is half? 30. 30 degree. 30. 30 degree यानी pi by 6 आया. But this is not my answer. ये मेरा आंसर है क्योंकि मुझे तो माइनस हाफ चाहिए. Is that clear, everyone? Now how will I go? Like मेरे को नेगेटिव का आंसर कहाँ पे मिलने वाला है? थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में. सो लेट्स गो इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट. अभी अपन थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं यूजिंग दिस. तो साइन ऑफ, टेल मी, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का कैसे? हाउ टू एंटर इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट? 90 plus. 180 plus. प्लस पाई बाई 6. ठीक है, तो 180 प्लस पाई बाई 6. साइन ऑफ 180 के कारण साइन का साइन ही रहेगा. बट क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है जिधर नेगेटिव वैल्यू आता है तो माइनस साइन आएगा. बट साइन ऑफ 30 डिग्री इज ऑलरेडी हाफ, यानी माइनस हाफ आंसर आया. तो मैंने जब ये वाला एलाइड एंगल यूज किया तो अब मेरे को माइनस आया. लास्ट टाइम मैंने ये एलाइड एंगल पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए किया. इस बार मैंने ये एलाइड एंगल्स किसके लिए किया है? नेगेटिव आंसर लाने के लिए. तो सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर मेथड यूज करना है, पर नेगेटिव किधर आता है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है. इसलिए ये पूरा इसी पे डिपेंड है, इसी के साथ खेलने का. तो तुमको साइन का वैल्यू नेगेटिव माइनस हाफ आ गया. देयरफॉर सॉल्व करो. 6 पाई प्लस पाई यानी क्या आएगा? साइन ऑफ 7 पाई बाई 6. 7 पाई बाई 6 इज माइनस हाफ. दैट्स माय क्वेश्चन. यही मेरे को चाहिए. देयरफॉर 7 पाई बाई 6 which lies between 0 and 2 pi is a principal solution. Now नेगेटिव जैसे पॉजिटिव दो आंसर आया, वैसे नेगेटिव भी दो जगह पे पॉसिबल है. एक तो इधर पॉसिबल था. नाउ टेल मी, दूसरा किधर पॉसिबल है? Fourth quadrant. quadrant. वेरी नाइस. फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉसिबल है. अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का कैसे? 2 pi Pi minus. minus. 2 पाई माइनस. एंगल वही रहेगा, एंगल पाई बाई 6 ही रहेगा. डोंट चेंज दैट एंगल. ठीक है. नाउ टेल मी, 180 वाले टर्म के कारण साइन का तो साइन ही आंसर आता है बिकॉज ऑफ एलाइड एंगल्स. ओके. नाउ दिस इज व्हिच क्वाड्रेंट? दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. यानी कि आंसर क्या आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर क्या आएगा? नेगेटिव. यानी आंसर क्या आ गया? माइनस हाफ. यही मेरे को चाहिए. मेरे को ये माइनस हाफ लाने का, मेरे को माइनस हाफ लाने का. दैट इज माय जॉब. मैंने माइनस हाफ लेके आ गया. ठीक है. अब इसको सॉल्व करना है. एक बार मेरे को माइनस हाफ आ गया, सॉल्व करो. व्हाट इज माय आंसर? साइन 12 पाई माइनस 1 पाई यानी कितना आएगा? 11 pi. 11 Pi by 11 pi by 6 is minus half. Therefore, 11 pi by 6, which lies between 0 and 2 pi, is a principal solution. उसी का थर्ड सम, √3 cosec theta plus 2 is equal to 0. Let us arrange it. If I solve it, √3 cosec theta is minus 2. cosec theta is minus 2 by √3. पर मेरे को cosec में इंटरेस्ट नहीं है. cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? sin का. What is sin equal to minus √3 upon 2. ठीक है. once again sin वाला ही टर्म आ गया. How will I start? sin of √3 by 2 किधर आता है? पहले वो ढूंढो. sin of रूट माइनस वाला उसके बाद सॉल्व करेंगे. sin of √3 by 2 किधर आता है? but sin of which angle is √3 by 2? That is my first question. Tell me. Sin of which angle is 60. 60 यानी नीचे 60 यानी नीचे 3 आएगा पाई बाई 3. ठीक है. बट दिस इज नॉट माय आंसर क्योंकि मेरे को तो माइनस √3 by 2 चाहिए. अब बाय एलाइड एंगल्स फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं. अपने को नेगेटिव चाहिए. तो सबसे पहला नेगेटिव, इधर दोनों पॉजिटिव, सबसे पहला नेगेटिव इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. अगर नहीं समझेगा ये रफ में बनाने का, ये चीज रफ में बनाने का ज्यादा टाइम नहीं लेगा. ये रफ में बनाओ और डिस्कस करो खुद के साथ. तुम्हारा फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का कैसे? व्हाट इज द मेथड टू गेट इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट?
180 क्या? plus 180 प्लस। इधर जाने के लिए 180 प्लस करो, इधर जाने के लिए 180 माइनस करो, इधर जाने के लिए 180 माइनस करो, ठीक है, लाइक दैट। सो दिस इज 180 प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, दैट इज 180 प्लस। एंगल का वैल्यू सेम ही रहेगा π/3। आई होप अभी तक ये स्टेप क्लियर हो गया रहेगा कैसे लिखने का, ठीक है। अब 180 के कारण साइन का साइन ही रहेगा, अंदर का एंगल सेम रहेगा, बिकॉज इट्स अ थर्ड क्वाड्रेंट तो माइनस आएगा, जो मेरे को चाहिए, मेरे को यही चाहिए, यही लाने का है। तो आंसर इज माइनस, एंड साइन ऑफ π/3 क्या होता है मैं पहले से ही लिख चुका हूं, व्हाट इज दैट आंसर, √3/2, ठीक है, ठीक है। अब मैंने पहले इसको फाइंड किया कि माइनस √3/2 आ गया, अब इसको सॉल्व करने का बिकॉज ये मेरा आंसर बनने वाला है, ठीक है, ये मेरा आंसर, ये मेरा सोल्यूशन है। सो व्हाट इज द आंसर, 3π + π यानी क्या आ गया, 4π/3 is minus √3/2. Therefore, 4π/3, which lies between 0 and 2π, is a principal solution. ठीक है? Now, second step. इसके बाद by once again by allied angles. पॉजिटिव रहता है ना तो एक ही बार allied angles यूज करना पड़ता है. Why? क्योंकि एक रिजल्ट तो इधर ही आ जाता है. पॉजिटिव वाले में एक रिजल्ट इधर ही आ जाता है, एक ही बार एलाइड यूज करना पड़ता है. नेगेटिव वाले में एक रिजल्ट इधर नहीं आता है, इसलिए अपने को 2 बार एलाइड एंगल यूज करना, हमको 2 बार नेगेटिव वाले जगह पे जाना पड़ता है. तो यहाँ पे दूसरे जगह पे कहाँ पे साइन नेगेटिव है, इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे जाने का, टेल मी हाउ टू गेट इनसाइड द फोर्थ क्वाड्रेंट. 2π minus साइन ऑफ 2π माइनस एंगल वही रहेगा π/3 इज 180 के 360 के कारण साइन का तो साइन ही वैल्यू रहेगा, बिकॉज इट्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस, एंड आंसर बिकम्स माइनस रूट. तो मेरे को माइनस √3/2 लाने का था, आ गया. अब इसको सॉल्व कर दो, दिस इज माय आंसर. 6π - π यानी क्या आता है आंसर, 6π - π, 3 2 6, 6π - π is 5π/3 is minus √3/2. Therefore 5π/3, which lies between 0 and 2π, is a principal solution. Final answer, both are the principal solution. Any questions till here? No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. The solution is, general solution is not limited to 2π. Now we can go ahead of 2π, means we can go above 2π. 2π के बाद 4π, 8π, 10π, so we can keep forming. That is, all these angles show periodicity, means repetition. Periodicity. This is called periodicity. ठीक है, यहाँ पर after a certain period, time period, it repeats, or after a certain angle, it repeats. That is, it is called as periodicity. Okay, so that is the definition of general solution. The solution of a trigonometric equation which is generalized by using its periodicity is called as a general solution. यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए we know that sin of 90 is 1. उसके बाद साइन का और कौन से जगह पे आंसर 1 आने वाला है, तो वी नो दैट साइन ऑफ 90 is 1. ठीक है, उसके बाद वापस 1 कब आएगा, पूरा रोटेट होने के बाद फिर से 5π/2, π/2 पे 1 है, साइन 5π/2 पे 1 है, साइन 9π/2 पे 1 है. तो इफ यू नोटिस इट, देयर इज अ पीरियोडिसिटी इज शोन, यानी आफ्टर अ सर्टेन एंगल ये वापस रिपीट होता है. आफ्टर अ सर्टेन पीरियोडिसिटी का मीनिंग व्हाटएवर इज रिपीटेड, तो यहाँ पे आफ्टर अ सर्टेन एंगल इट कीप्स ऑन रिपीटिंग, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द जनरल सॉल्यूशन. सबसे पहले साइन का जनरल सॉल्यूशन. फॉर साइन थीटा द जनरल सॉल्यूशन, थीटा का वैल्यू, ओके, और ये फिक्स वैल्यू है, ये लर्न करने का है. द फिक्स वैल्यू इज 2nπ प्लस और माइनस, ठीक है, आंसर इज 2nπ, nπ प्लस और -1 raised to n alpha. ठीक है, so this is the angle that we have to learn. Means after every, मतलब n की वैल्यू चेंज होने वाली है, n का वैल्यू 1 रहेगा. फॉर एग्जांपल अगर मैंने साइन 91 लिया तो n का वैल्यू 1 है, तभी मैं जब इसको सॉल्व करूंगा
तभी साइन ऑफ 90 1 आएगा। फिर बाद में n का वैल्यू 2 लिया तो ये पूरा रिपीट होने के बाद वापस आएगा। 3 लिया तो ये पूरा वापस रोटेट होके इधर आएगा। सो इट विल शो पीरियोडिसिटी, यानी इधर 1 आया, वापस सर्टेन पीरियड में इधर वापस 1 आएगा, फिर से वापस इधर 1 आएगा, लाइक दैट। सो दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। ओके, यानी रिपीटेशन। ओके, तो वो रिपीटेशन हर बार आप दिखा नहीं सकते, मतलब थीटा का वैल्यू मैं ऐसे नहीं लिखने वाला π/2, 5π/2, 9π/2, ठीक है, या -π/2, -5π/2, -9π/2, ऐसे दिखाते नहीं बैठोगा। तो रादर देन शोइंग इट लाइक दिस, आई विल शो इट लाइक दिस, जहाँ पे n will keep changing its value। n का वैल्यू 1 आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा, -1 आएगा, -5, -9। So this n value will keep on changing, ठीक है। This is called as periodicity। तो साइन का पीरियोडिसिटी का एंगल लर्न करके रखो, ये साइन का वैल्यू है। वैसे ही कॉस का लर्न करने का है, cos थीटा। For cos थीटा, थीटा is equal to n pi। For cos theta, theta is equal to 2n pi plus or minus alpha। For tan theta, अगर tan वाला वैल्यू आया तो आंसर इज n pi plus or minus alpha, ठीक है। So these are the values which you need to learn। tan के लिए सिर्फ प्लस ही आएगा, तो अभी पहले ये इतना पार्ट लर्न करो, then we will proceed। Okay, now sin theta is half, but sin of which angle is half? Yes, please. Sin of which angle is half? 30. Sin of 30 degree is half. Okay, therefore the general solution of theta is, अभी सिर्फ 30 डिग्री पे हाफ नहीं आएगा, और भी बहुत जगह पे हाफ आएगा। अपने को सिर्फ एक ही बार ढूंढना है। जैसे पर्टिकुलर सोल्यूशन में हम लोग 2 बार ढूंढते थे, किधर किधर हाफ आता है, इधर हाफ आता है, ठीक है, और एक इधर हाफ आता है, ठीक है। प्लस हाफ 2 जगह पे आता है। यहाँ पे अपन ऐसा नहीं करने वाले, यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे ढूंढेंगे और उसको जनरलाइज करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? n pi प्लस -1 रेज टू n अल्फा। ये जो एंगल है वो मेरा अल्फा का रोल प्ले करेगा, 5/6, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको लिखने के बाद पहले लिखूंगा अल्फा इज 5/6, इधर से मैंने अल्फा 5/6 लिया एंड देन जनरल सॉल्यूशन में पुट अप कर दिया। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। इसी का सेकंड वन, cos theta is √3/2। So tell me, cos of which angle is √3/2? 30. Cos of 30 is √3/2। Therefore अल्फा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। Therefore general solution, what will be the general solution? Tell me, what is theta equal to? 2n pi. 2n pi plus or minus alpha. Yes, alpha. 5/6, ठीक है। Let's take the next one, third, tan theta is 1/√3। Now tell me, tan of which angle is 1/√3? 30. Tan of 30 डिग्री। जब मैं 30 वर्ड यूज कर रहा हूँ तो नीचे 6 लिख रहा हूँ, याद रखना। Therefore alpha is equal to 5/6। Therefore what is the general solution? Theta is equal to, tan के लिए थीटा का वैल्यू में सिर्फ प्लस आता है, माइनस नहीं आता है। तो आंसर इज n pi plus 5/6। That's it। Yes. Now tell me, cosec theta is -√2। Can you please help me with the step? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? Cosec is the Reciprocal. what is sin theta? -1/√2, ठीक है। But sin of which angle is 1/, अभी ये जो स्टेप करे ना, ये हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में पहले किया हुआ है। Start with it. First, sin of which angle is 1/√2? 45. Sin of 45 is 1/√2। पर ये मेरा अल्फा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज अपने को नेगेटिव चाहिए, अभी ये पॉजिटिव आया।
अब मेरे को नेगेटिव जाने का है, तो साइन में नेगेटिव सबसे पहले नेगेटिव किधर बन रहा है, इधर बन रहा है ना, इधर भी बनता है, पर अभी हम लोग ये वाला लेंगे, ठीक है। तो इधर नेगेटिव बन रहा है, तो यहाँ पे कैसे जाएंगे, अगला गो हियर 180 180 180 plus 180 प्लस 5/4, ठीक है, दो जगह पे आता है, वी विल ओनली टेक द फर्स्ट वैल्यू 180 प्लस 5/4। तो 180 के कारण साइन का साइन ही रहेगा, और 180 प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव आएगा, माइनस साइन ऑफ 45 इज 1/√2। नाउ नोटिस इट, अब मेरे को -1/√2 आया। Therefore, अब इसको सॉल्व, अभी जो मैं स्टेप बता रहा हूँ यही वही स्टेप है जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कर चुके हैं। 4π + 5 यानी कितना आ गया, साइन ऑफ 5π/4 इज -1/√2। अब ये मेरा अल्फा बना, व्हाट इज अल्फा, 5π/4, ये अल्फा मिल गया, पर मेरे को थीटा चाहिए, जनरल सॉल्यूशन चाहिए। तो साइन के लिए जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, साइन के लिए ये वाले के लिए जनरल सॉल्यूशन इज n π प्लस -1/n अल्फा, यानी n π प्लस -1/n, अल्फा के बदले आएगा, इज दैट क्लियर, यहाँ तक स्टेप समझ में आ गया, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब नेक्स्ट वाला, इसी का थर्ड, tan theta is -1, okay, so let's apply the similar steps here। सबसे पहले 1, माइनस पे डायरेक्ट मत जाना, सबसे पहले 1 कब आता है, tan of 45 is 1, so ये मेरे को मालूम था, tan of 45 is 1। अब -1 लाते हैं, नाउ टेल मी, ये यहाँ पे प्लस है, इधर प्लस है, पहला माइनस किधर, फर्स्ट माइनस किधर आता है, इधर तो माइनस आता है, ये मुझे मालूम है, पर पहला माइनस किधर आता है, इधर आता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे, tan ऑफ, इधर कैसे जाएंगे, 180 minus 180 minus 5/4 will become, because ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस tan 5/4, सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस आया, 180 के कारण tan का tan ही रहेगा और 45 आएगा, दैट इज -1, ठीक है। अब -1, अब मेरा रिजल्ट आ गया -1। अब इसको सॉल्व करो, तो व्हाट विल आई गेट, tan ऑफ 4π minus 5 यानी 3π/4 is -1। Therefore, what is alpha equal to 3π/4? Therefore, what is the general solution? Theta is equal to, what is the formula for general solution? n5 plus alpha. n/pi plus alpha, alpha is 3π/4, ठीक है। यहाँ पे n का वैल्यू बिलोंग्स टू z, यानी z मतलब रियल नंबर्स, ठीक है, z का वैल्यू इज द रियल नंबर्स ओवर हियर, ओके। करना वही स्टेप्स है, सो यू डोंट हैव टू बी वरीड, लेट्स स्टार्ट विद द सेम स्टेप्स। टेल मी, फर्स्ट स्टेप, हाफ चाहिए, हाफ कब आता है, बट साइन ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी नीचे 6 आ गया, इज हाफ। अब मेरे को पॉजिटिव ही चाहिए था, ठीक है, तो ये मेरे को पॉजिटिव ही चाहिए ना, आई होप यू आर गेटिंग इट, मेरे को ये पॉजिटिव ही चाहिए था, यानी therefore what is alpha equal to, what is alpha equal to 5/6 ठीक है, तो डायरेक्ट अल्फा मिल गया। therefore general solution, what is the general solution, 2 theta is equal to n/pi plus -1/n alpha, alpha यानी π/6, यहाँ तक क्लियर। बट मेरे को जनरल सॉल्यूशन 2 थीटा का नहीं, थीटा का चाहिए, सो व्हाट इज थीटा इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो, हो गया, यानी क्या आएगा, n/2 2 से डिवाइड किया प्लस -1/n π/2, सिर्फ 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा कैलकुलेशन करना है। लेट्स टेक अनदर वन, tan of 2 θ/3 is equal to √3, tan of 2 θ/3 is equal to √3। now let's start with this, पहले अपने को इसको टैकल करना है, √3, but tan of which angle is √3, 60. tan of 60 is √3, 60 यानी π/3 is √3, ठीक है। तो पहले मेरे को आंसर मिल गया। अच्छा, नेगेटिव का प्रॉब्लम नहीं है तो एलाइड एंगल यूज करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली। therefore what is alpha equal to
pi by 3. Therefore जनरल सॉल्यूशन, पर पहले मेरे को जनरल सॉल्यूशन किसका मिल रहा है 2 थीटा बाई 3, इसका जनरल सॉल्यूशन मिल रहा है क्योंकि मैंने अलाइंड एंगल मैंने वैल्यू इसके लिए ढूंढा है, इसके लिए ढूंढा है, यानी इसका जनरल सॉल्यूशन मिल रहा है. सो 2 थीटा बाई 3, व्हाट इज tan का जनरल सॉल्यूशन n pi plus alpha. pi by 3. ठीक है, पर मेरे को जनरल सॉल्यूशन इसका नहीं थीटा का चाहिए. देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय 3 करो. मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3n पाई आएगा और फिर डिवाइड बाय 2 करो क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड किया तो 2 यहाँ पे 2 कैंसिल होगा. सो व्हाट इज थीटा इक्वल टू, टेल मी. 3n पाई बाय 2, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, 2 से डिवाइड किया तो डिवाइड बाय 2 आया, प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो पाई आया, Pi by 2 2. से डिवाइड किया तो बाई 2 आया. dn pi plus pi by 2. Next question is second one. 4 sin square theta is equal to 1. Now 4 sin square theta is 1. So tell me, क्या steps आएगा? Yes, steps क्या आएगा? Sin What is square sin theta square? is 1/4. Is 1/4. And 1/4 कैसे आता है? 1/2. 1/2 का स्क्वायर. और 1/2 कब आता है? Sin of which angle is 1/2? 30. 30. Sin of 30 डिग्री. 30 यानी नीचे 6 Pi आएगा by 6. का स्क्वायर. एक बार तुमने इसको कंपेयर कर लिया तो अल्फा मिल जाएगा. व्हाट इज अल्फा इक्वल टू? Pi by 6. Alpha is pi by 6. Therefore, general solution theta is equal to n pi plus or minus L pi again. Any trouble till here? Please ask. Any questions?